અમદાવાદના જુહાપુરા વિસ્તારમાં ગૌમાંસના કથિત કેસમાં ઝડપાયેલા જહીર ઉર્ફે જહીર ડબ્બાના મોત મામલે રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે। આ સમગ્ર મામલે હવે નવો વળાંક આવ્યો છે, કારણ કે પીડિત પરિવાર સાથે ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી અને સામાજિક કાર્યકર ઇમરાન ખેડાવાલાએ રાજ્યના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી સમગ્ર ઘટનાની નિષ્પક્ષ અને તથ્ય આધારિત તપાસ કરવાની માંગ ઉઠાવી છે। મળતી માહિતી મુજબ જહીર ડબ્બાની વેજલપુર પોલીસ દ્વારા કથિત ગૌમાંસ મામલે અટકાયત કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ તેની તબિયત બગડતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેનું મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે। જો કે પરિવારજનોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે પોલીસ કસ્ટડી દરમિયાન મારઝૂડ અને માનસિક દબાણના કારણે જહીરનું મોત થયું છે। આક્ષેપોને લઈ જુહાપુરા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। પીડિત પરિવાર સતત ન્યાયની માંગ કરી રહ્યો છે। પરિવારજનોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે જો જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો તેઓ લડત ચાલુ રાખશે। આ સમગ્ર મામલે ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી, ઇમરાન ખેડાવાલા અને પરિવારના સભ્યોએ રાજ્યના પોલીસ વડા અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી। મુલાકાત દરમિયાન વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશનના 3 અધિકારીઓ સામે ગંભીર આક્ષેપો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। સાથે જ ઘટનાની હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત જજ અને સ્વતંત્ર એજન્સી દ્વારા તપાસ કરાવવાની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી। મુલાકાત બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા જિગ્નેશ મેવાણીએ જણાવ્યું કે જો કોઈ વ્યક્તિ આરોપી હોય તો પણ કાયદાને પોતાના હાથમાં લેવાનો અધિકાર કોઈને નથી। પોલીસ કસ્ટડીમાં કોઈનું મોત થાય એ અત્યંત ગંભીર બાબત છે। અમે સમગ્ર ઘટનાની પારદર્શક તપાસ અને જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી માંગીએ છીએ। ઇમરાન ખેડાવાલાએ પણ જણાવ્યું કે પરિવારને ન્યાય માટે તેઓ કાનૂની અને સામાજિક રીતે લડત ચાલુ રાખશે। સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે જો જરૂરી બનશે તો રાજ્યવ્યાપી રજૂઆતો અને વિરોધ કાર્યક્રમો પણ કરવામાં આવશે। હાલ રાજ્ય પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। બીજી તરફ લોકોની નજર હવે એ વાત પર છે કે શું ખરેખર આ મામલે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી થશે કે નહીં। આ ઘટનાએ ફરી એકવાર પોલીસ કસ્ટડીમાં થતી ઘટનાઓ અને માનવ અધિકારના મુદ્દાઓને ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવી દીધા છે। હવે આવનારા દિવસોમાં તપાસમાં શું ખુલાસા કરે છે અને સરકાર કે પોલીસ તંત્ર શું પગલાં ભરે છે તે જોવું महत्वपूर्ण રહેશે। अहमदाबाद शहर के वेजलपुर इलाके में कस्टोडियल टॉर्चर का, कस्टोडियल डेथ का एक मामला सामने आया है। जहीरुद्दीन नाम के एक अक्यूज़ को उनके परिवारजनों का कहना है विक्टिम के बेरहमी के साथ मारा पीटा गया। पूरा वाक़या क्या है वो तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, वो जांच का विषय है। लेकिन पीड़ित परिवार के सामने जिनकी मृत्यु हुई उन जहीरुद्दीन भाई ने ये कहा है कि उनके गुप्तांगों पर लात मारी गई, उनके साथ फिज़िकल वायलेंस हुआ और उनको न जाने कौन सी दवाइयाँ दी गई जिसके कारण ये हुआ है। साथ साथ इसी वेजलपुर पुलिस स्टेशन में करीब 2-2.5 साल पहले इसी प्रकार से कस्टोडियल टॉर्चर का, कस्टोडियल डेथ का दूसरा मामला भी सामने आया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को उसकी जांच दी गई थी। आज 2 साल के बाद भी उस मामले में न ऑफेंस दर्ज हुआ है, न कोई गिरफ्तारी हुई। हाल ही में 10-15 दिन पहले किसी मामले में वेजलपुर पुलिस के खिलाफ ये भी इल्ज़ाम है कि गाड़ी के साथ बांधकर एक अक्यूज़ को बेरहमी के साथ पीटा गया था। ये मामला सामने आने के बाद और एक चौथा परिवार, उन्होंने जो लोअर कोर्ट में याचिका दर्ज की है उसकी कॉपी विक्टिम फैमिली को देके गया कि उनके साथ भी इस प्रकार से ज्यादती हुई है। तो अक्यूज़ जो होता है वो आरोपी, कोई भी संगीन गुनाह का आरोपी हो या छोटे मोटे गुनाह का आरोप हो, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर उसको रिमांड में भी लेना चाहिए। लेकिन पुलिस को भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। तो आज हम लोग ये डिमांड करें, गुजरात के डीजी साहब को मिलकर कांग्रेस पार्टी के हमारे डेलीगेशन ने, हम सब ने ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी मामला हुआ है बड़ा संगीन है, दर्दनाक है। एक गुजरात के सिटीजन ने जान खोई है, उसकी जाति क्या थी, उसकी धर्म क्या थी, उसके बजाय ये देखना चाहिए वो एक गुजराती है, वो एक भारतीय है, तो उसको न्याय मिले, ऑफेंस दर्ज हो और जिसके इंटीग्रिटी पे सवाल न हो उस प्रकार के किसी ऑनेस्ट अफसर को जांच देनी चाहिए। हमने आज मांग रखी है। डीजी साहब ने बोला है कि आप लिखित में दीजिए कि किन अफसरों से आप जांच करवाना चाहते हैं। और पहले का जो मामला हुआ था 2-2.5 साल पहले, उसमें भी मामला कहाँ तक पहुँचा उसकी भी हम लोग पूछताछ करवाएंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना ये केवल वेजलपुर का मामला नहीं, गुजरात का कोई भी इलाका हो, कोई भी प्रदेश हो,
किसी भी पार्टी की सरकार हो, अक्यूज के साथ पुलिस को सख्ती से बरतना पड़ता है, वो हम समझ सकते हैं। रिमांड पर भी लेना पड़ता है, कुछ लोग आसानी से मुंह नहीं खुलते, लेकिन पुलिस का रवैया इस प्रकार का कतई नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, वो बेगुनाह है या गुनहगार है, उसको जान से हाथ धोना पड़े, उसकी मृत्यु हो जाए कस्टडी के अंदर, ये किसी कीमत में भारत का संविधान उसकी परमिशन नहीं देता है। उनके जो परिवार के, उनके जो जिनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने खुद बताया है और एक से ज़्यादा मल्टीपल वीडियोस में बताया है कि उनके गुप्तांगों पर लात मारी गई। अब ये ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, मतलब कि सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच का विषय है। जांच कौन करेगा? जो शराब में से, चरस में से, गांजे में से, जुए में से, माइनिंग में से, एमडी ड्रग्स में से भाजपा की चापलूसी करके जो पैसे कमाते हैं, यदि उन्हीं अफसरों को जांच मिलेगी तो हमको कोई यकीन नहीं है। तो ठीक ठाक जिसकी इंटेग्रिटी हो, जिसकी स्पाइन थोड़ी मजबूत हो, जो कांग्रेस भाजपा के बजाय भारत के संविधान की सुने, ऐसे एक दो अफसर जो बचे हैं, उनसे आप जांच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पुलिस ऑफेंस दर्ज करे और हम लोग विक्टिम परिवार की ओर से जो भी नाम दे, आज शाम तक या कल सुबह तक उनको जांच दीजिए। यदि अहमदाबाद पुलिस को, गुजरात की पुलिस को कुछ छुपाना नहीं है, यदि उनके दिल में खोट नहीं, तो विक्टिम फैमिली की ओर से जो 2-3 अफसरों का नाम दे, उसमें से कोई भी 2 अफसर को आप जान दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आज गुजरात के डीजीपी साहब को हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा, मेरे साथी धारासभ्य जिग्नेश भाई, अमरुद जी, आज हम लोग पूरा डेलीगेशन लेकर आज डीजीपी साहब को मिले हैं। खास करके जो वेजलपुर की जो घटना बनी है, उस घटना के अंदर जो कोई भी कसूरवार है, जो अधिकारी कसूरवार है, जो कांस्टेबल कसूरवार है, उसके सामने एक्शन लिया जाए। खास परिवार की जानकारी के मुताबिक कि उनको बेरहमी से मारा था और उसको गुप्त भागों में भी लाते मारी थी, इस तरह की उनके परिवार की जो फरियाद है, वो फरियाद आज हमने डीजीपी साहब को बताई। उनके परिवार के, उनके लड़के, उनको डीजीपी साहब को हमने मिलवाया और ख़ास करके आज सुबह भी गयासुद्दीन शेख साहब और मैं अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब को सुबह हम मिल के आए। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि इसमें कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। सीपी साहब ने जिस तरह से बताया कि इसका पैनल के डॉक्टरों के ज़रिए उसका पीएम होगा, उसके बाद उसकी फ़ोटोग्राफी के साथ, उसकी वीडियोग्राफी के साथ वो पीएम होगा और उसमें कसूरवार पीएम के अंदर जो भी रिपोर्ट के अंदर आएगा उसके ऊपर हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, ऐसा सीपी साहब ने भी कहा है। और आज हमको डीजीपी साहब ने भी ये खातरी दी है कि आप अगर इसकी अलग से जांच करवाना चाहते हैं तो आप भी अलग से एक लेटर पे दे दो कि ये अधिकारी से हमको जांच करवानी है, तो वो भी, उसके लिए भी गुजरात डीजीपी साहब ने तैयारी बताई है। तो मैं और जिग्नेश भाई एक लेटर पैड पे हमारे दोनों के, अमित भाई चावड़ा के लेटर पैड पे हम लिख कर देने वाले कि अधिकारी से आप इसकी जांच कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि देश के अंदर और जिस तरह से गुजरात राज्य के अंदर जैसी घटनाएं बनती है कस्टोडियल डेथ की, तो बड़ी शर्मनाक घटनाएं होती है। ऐसी घटनाएं नहीं बननी चाहिए और इसके लिए जो भी पुलिस अधिकारी है उसको जांच दें, वो तपास करके इसमें कसूरवार के सामने एक्शन ले। हमारी यही मांग है। धरना तो जारी ही रहेगा जब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और जैसे कि हम लोग जो उम्मीद लेकर यहाँ पे डीजीपी साहब के पास आए थे, इमरान खेड़ावाला सर, जिग्नेश मेवाणी सर, फिर एक और सर थे हमारे साथ, अमित चावड़ा सर, जिस तरह की हमारी रजूआत थी वैसी हमने रखी और सर को बताया कि ये पुलिस कस्टडी के अंदर थे और सारी दवाइयाँ भी पुलिस कस्टडी के अंदर थी। अगर पुलिस कस्टडी के अंदर कोई आरोपी को पेशाब करने भी जाना होता है तो उसके साथ में 2 पुलिस वाले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी दवाइयाँ पुलिस कस्टडी में थी, तो ये सारी दवाइयों का, इतनी सारी दवाइयाँ इतनी ज़्यादा डोज के अंदर उनको दी गई जिसके उनकी डेथ हो गई और उनको मारा गया। जैसा मेरे डैडी ने बताया था लास्ट टाइम, जो वीडियो मैंने आप लोगों ने देखा ही होगा। तो हमारी जो उम्मीद थी वो हमने सर को बताई, तो सर ने बोला है कि अगर कस्टडी के अंदर दवाइयाँ थी और कस्टडी में था तो उनके ऊपर सख्त सख्त एक्शन लिया जाएगा। और हमारी उम्मीद एक ये भी थी कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी और ऑफिसर से करवाई जाए। हमको इन पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि एक जो चोर होता है और उसी को रखवाली करने दी जाए तो फिर वो जो चोर है ना, उसको सब पता चलता है कि ये क्या क्या हो रहा है, उसको कैसे बचना है, कहाँ से निकलना है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नए ऑफिसर की बात की है। सर ने बोला भी है कि एक पैम्पलेट पे लिख के दीजिए,
हम लोग ज़रूर उसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपकी जो मांग है उसको पूरी करेंगे और हम इससे में संतुष्ट है। सर ने ऐसा बोला है तो दफन विधि का अभी हाल फिलहाल हमको नहीं ले जाना है जब तक हमारी जो संतुष्ट है FIR नहीं होगी। सर ने जिस तरह से बताया नए ऑफिसर को अगर दी जाती है उसके बाद क्या परिणाम आता है उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी बॉडी हमको लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि वो तो पुलिस कस्टडी में। हमारी मांग ये है कि बॉडी को ले जाके लॉकअप में रख दीजिए, हम जामीन करवा लेंगे। आपने मार ही दिया है ना जिंदा आदमी को, दवाइयाँ दे के, मार के, पर्सनल चीज़ों पे लाते मार के, टॉर्चर करके, मेंटल टॉर्चर। उनको सुबह 11:30 बजे से रात के 12 बजे तक खाना नहीं दिया गया था, भूखे थे वो, ठीक है। और ना किसी को वहाँ मिलने दिया जा रहा था। जिस रूम में उनको रखा था डिस्टर्ब के रूम में, वहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं होता। मैं खुद देख के आया हूँ, कैमरा नहीं है। वो उनका पर्सनल लेन देन के लिए रूम बनाया गया जहाँ पे उनके सारे व्यवहार हो जाए। इस पुलिस स्टेशन के अंदर दारू, चरस, MD इन सब के धंधे वालों को खूब छूट दी जाती है और सब चीज़ें चलती है, लेकिन यहाँ पे पर्सनली टारगेट किया जाता है। और सारे PI की अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर बदली हो गई, लेकिन जिस PI के वो यहाँ पे रखा गया है उसके ऊपर काफ़ी सारे मामले दर्ज है मार के, लेकिन अभी तक इसका कोई ट्रांसफ़र नहीं है। पता नहीं कौन सपोर्ट कर रहा है, ना ये पुलिस वालों के ट्रांसफ़र आया है। और इन पुलिस वालों के ऊपर ऑलरेडी 2 कस्टडी डेथ का आरोप है और PI के ऊपर भी है। और 2 साल पहले मेरे डैडी को इन्हीं पुलिस वालों ने मारा था एक केस के अंदर, और इस PI ने कोर्ट के अंदर केस किया। हमने जज ने पूछा तो, और उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें रिपोर्ट में आया कि हाँ मारा है। इन लोगों के ऊपर फरियाद भी हुई, वो पेंडिंग चल रही है। ये लोगों ने मारा है। बहुत सारा प्रेशर दबाव, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं पुलिस वाले। आप एक बार, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वीडियो ही देखिए कि पुलिस स्टेशन में कौन से लोग मौजूद है पुलिस वालों के साथ में खड़े हुए, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों की बातों में मैं नहीं आऊँगा, मैं किसी से डरता भी नहीं, ना डरूंगा कभी। मेरे पापा जैसा हूँ, ठीक है, सच के साथ खड़ा रहने वाला, और मैं एंड तक लड़ूंगा और मैं इसके अंदर इंसाफ लेकर ही रहूँगा। हाँ, मेरे साथ में जब मैं प्रदर्शन कर रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे पेपर्स दिए हुए, जिन लोगों ने इन पुलिस कर्मियों के ऊपर FIR की हुई है, जिन्होंने मारा है बेरहमी से, पैसे भी लेते हैं ये लोग हर तरह से। वो सारे डिटेल्स आते रहेंगे। और मैंने आज एक और वीडियो अपलोड किया है मेरी ID के ऊपर। जैसा कि पुलिस इनकी इमेज बता रही है कि अक्षय बहुत अच्छा है, फिर PSI बहुत अच्छा है, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली जिस तरह से ये एक 80 साल की औरत है, उनसे बात कर रहे मेरी अम्मी से। तो आप देखिए किस तरह की लैंग्वेजेस है। मैंने वीडियो मेरी वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, आप ज़रूर उनको देखिए। और इनकी रियलिटी सामने ला रहा हूँ। इनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके नंबर प्लेट भी नहीं है, वो भी देखिए। ये लोग सिर्फ धमकाने आते थे मेरे घर के ऊपर। वो वीडियो आप मीडिया में भी मैं मीडिया में ज़रूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। सुबह मैंने जिग्नेश मेवाणी सर को फ़ोन किया था और उनको पूरी हकीकत बताई थी इस केस के अंतर्गत कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। और जिग्नेश सर ने मेरे को फ़ौरन ही बोला कि मैं 4 बजे DGP ऑफिस पे आ रहा हूँ, तो आप वहाँ पर हाज़र रहना और जो भी आपकी रजूआत है हम DGP साहब से करेंगे। तो आज मैं और मेरे जो अर्जदार के जो फादर एक्सपायर, उनके लड़के, हम लोग DGP साहब के साथ पर्सनली पूरा जो डेलीगेशन कांग्रेस का जो था, उन्होंने जो हमारे लिए रजूआत की। और कल रात को 1:30 बजे तक हमने ACP साहब को एक ही मांग की कि भाई इस तपास की आप बात कर रहे हो कि भाई अभी हम पहले तो सब डिटेल लेंगे, उसके बाद FIR लॉन्च करेंगे। मैंने और कई एडवोकेट्स भी वहाँ पर कल वेजलपुर पुलिस स्टेशन में रात को हाज़र थे और उनका भी यही कहना था कि भाई पहले आप FIR लॉन्च करो, उसके बाद आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो अधिकारी के नाम आए उसको आप अरेस्ट करो, उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई करो। पर ACP साहब का जो AB वाणन साहब थे, उनका 1:30 बजे तक का स्टेटमेंट ये आ रहा था कि भाई हमने जो चीज़ें, ये डेथ का क्या रीज़न आया है और वो सब एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आपकी FIR लेंगे। ना छूट के आज हमारे DGP साहब के पास में आना पड़ रहा है इस केस को लिए कि भाई आज दिन तक पुलिस हमारे ऊपर इतना सारा एक्टोशन होने के बाद आज हमारा अर्जदार खुद दुनिया से चले गया। और इस केस के रिगार्डिंग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के करनी चाहिए थी, उसके बावजूद पुलिस अदरवाइज़ कुछ अलग ग्रीवियंस रखकर इस केस को लंबा करने के लिए, और ये चीज़ जो आज इंसिडेंट इतना बड़ा क्रिएट हुआ है वो भी वेजलपुर के अंदर 2 साल के अंदर 2 बार। मैंने को जब सर ने बोलने का मौका दिया, DGP सर ने, तो मैंने उनको यही बात बोली कि सर 2-2.5 साल के अंदर सेकंड बनाव हुई है और 2 बनाव ऑलरेडी हो चुके। वेजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, तो इसमें सर कौन इन्वॉल्वमेंट है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मेवाड़ी सर ने जो बात रखी कि हाँ, उन्होंने कई अधिकारी को नाम दी कि भाई इसकी जांच ये अधिकारी करे, हमारी उस मांग है वो जांच ये अधिकारी करेंगे तो बहुत ट्रांसपेरेंसी से पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी।
तो आज जो जिग्नेश मेवाणी सर, इमरान खेड़ावाला सर, अमित चावड़ा सर जो हमारे लिए आए हैं और डीजीपी साहब से जो रजूआत की है, हमको पूरी खातिरी है कि हमको न्याय मिलेगा यहाँ से। और डीजीपी साहब ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने के लिए भी कहा है। आगे हम न्याय की मांग के लिए इधर आए हुए हैं, आगे हम देखेंगे कि हमारे केस में अब क्या होता है।